Today we will start our lecture of cell cycle and cell division. Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? कैसे सिंगल सेल से होता है? जैसे दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दो न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होता है, सॉरी जाइगोट, और ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल का होता है, और ये डिवाइड करके क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। You may wonder how a single cell goes on to form such large organisms. Growth and reproduction are the characteristic of cell. Cell characteristic क्या है? Growth and reproduction. Indeed of all living organisms. All cell reproduce by dividing into two. Cell कैसे reproduce करते हैं? वो एक से दो में बदल के reproduce करते हैं. With each parental cell give rise to a two daughter cell. और हर एक पेरेंटल सेल कितना देता है? दो डॉटर सेल. Each time they divide. These newly formed daughter cell can themselves grow and divide, give rise to a new population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to a structure consisting of millions of cells. Now we will start our actual cell cycle. Cell cycle का मतलब एक सेल है वो कैसे डिवाइड करता है, कैसे ग्रोथ करता है, मतलब सेल का हम लोग लाइफ पढ़ेंगे. लाइफ ऑफ सेल मतलब सेल साइकिल मतलब सेल का लाइफ. Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of cell, DNA replication and cell growth also take place. Cell division में क्या होता है? DNA replication और cell का growth भी होता है. All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genomes. The sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells is called termed as cell cycle. Also, cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. मतलब साइटोप्लाज्म हमेशा क्या होता है? बढ़ते ही रहता है. DNA synthesis occur only one specific stage of cell cycle. The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are then themselves undergo genetic control. मतलब ये सारी चीजें हम लोग सेल साइकिल में देखेंगे, आगे देखेंगे. Phases of cell cycle. Phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell is illustrated by human cell in culture. This cell divide once in approximately. मतलब एक एवरेज टाइम लिया गया है. एवरेज टाइम कितना होता है? 24 आवर. ह्यूमन सेल का मतलब ह्यूमन सेल का हमारा एवरेज टाइम क्या है? ह्यूमन सेल का 24 आवर. और वही ईस्ट में क्या है? ईस्ट में 90 मिनट. ईस्ट में 90 मिनट्स. However, this duration of cell cycle can be vary from organism to organism and can also from cell type. मतलब ये हमारा एवरेज लिया गया है. ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप में भी वेरी कर सकता है. यानी हमारा लिवर स्प्लीन ये सारी चीज का जो सेल का डिवीजन होगा वो अलग अलग टाइम में, लेकिन जो एवरेज निकाला जाता है वो कितना है? 24 आवर का. और ईस्ट कितना मिनट में डिवाइड करता है? एवरी 90 मिनट. और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इवन 20 मिनट में भी डिवाइड करते हैं. सेल साइकिल का दो फेज होता है. एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज. एम फेज जिसमें एक्चुअल में डिवीजन होता है. और ये जो है ये सारा चीज़ क्या है? इंटरफेज. इंटरफेज में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ सेल. मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. ग्रोथ ऑफ सेल यानी प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन. ऐसे भी कर सकते हैं. इंटरफेज इज द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन. ये जो इंटरफेज है हमारा, ये जो इंटरफेज इसे हम लोग क्या भी कर सकते हैं? प्रिपरेशन. इसे हम लोग प्रिपरेशन फेज भी कर सकते हैं. मतलब इसमें अपने सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है टू डिवाइड. और जो एम फेज है, एक्चुअल एम फेज में ही क्या होता है? हमारा डिवीजन ऑफ सेल होता है. द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर. एम फेज में द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. मतलब ऐसे प्रिपरेशन फेज भी कर सकते हैं. It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95%. मतलब जो सेल डिवीजन यानी जो एम फेज है, और एम फेज जो कितना होता है? मैक्सिमम
5% का होता है, लेकिन जो इंटरफेज है वो कितना होता है 95%। यानी जो सेल डिवीजन एक्चुअली हो रहा है वो कितने देर के लिए हो रहा है, 1 घंटे के लिए ही हो रहा है। 1 घंटे में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो जा रहा है। लेकिन जो इंटरफेज है वो कितना 95% लेता है। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome। सबसे पहले एम फेज में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। द इंटरफेज थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, और इंटरफेज में क्या कहते हैं हम लोग, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि सेल रेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो रेस्ट नहीं करता है, वो अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इसमें इंटरफेज में क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन by undergoing both cell growth and DNA replication and in an orderly manner। The interphase is divided into 3 फेज। इंटरफेज को कितने भाग में बताया गया है, 3 फेज में। एक G1, S एंड G2, गैप वन सिंथेसिस एंड गैप 2। G1 यानी गैप 1, S यानी सिंथेसिस, और G2 यानी गैप 2। G1 में भी बहुत सारा प्रिपरेशन होता है, S में भी सिंथेसिस और कुछ प्रोटीन वगैरह होते हैं, और G2 में भी कुछ सिंथेसिस होता है। देखते हैं इसमें आगे क्या क्या होता है। G1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन, G1 किसके बीच में है, जैसे ये हमारा सेल साइकिल है तो कितना होता है, इतना तो एम पेज था, और ये है जैसे ये देखिए ये हमारा क्या है G1, G2 एंड S, G1, G2, G1 S, G2, G1 S एंड G2। तो G1 किसके बीच में आ रहा है, एम फेज के बीच में और S फेज के बीच में। तो इज बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। जीवन में क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। एस फॉर सिंथेसिस, एस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस है। The phase marks the period during which DNA synthesis or replication take place। During this time DNA per cell double है, यानी वो क्या होता है, हर एक का रेप्लिका बना लेता है वो। यानी ऐसे कह सकते हैं 2C का मतलब क्या है, जैसे DNA का होता है एक ऐसे होता है, फिर एक ऊपर एक नीचे, और रेप्लिका करके क्या मतलब एक ऊपर एक नीचे, ये मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, इधर का एक है और इधर के दोनों आइडेंटिकल होंगे। इसी प्रकार मतलब 2C एक ये और एक ये। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि ऐसे होता है, जुड़ा होता है ऐसे, तो एक C ये हो गया और एक C ये हो गया, तो 2C नॉर्मल होता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक और बढ़ जाता है, तो 4C उसे हम लोग कहते हैं। However, there is no increase in chromosome number, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर 46 का 46 ही रहता है। If the cell है diploid or 2n, diploid है तो ही diploid or 2n of chromosome at G1 even after S phase the number of chromosome remains at 2n। S phase के बाद भी क्या होता है, वो 2n ही रहता है। In animal cell during the S phase DNA replication begin in the nucleus, the central duplicate in the cytoplasm। and DNA replication किसमें होता है, न्यूक्लियस में, एंड सेंट्रियल डुप्लीकेट कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए G2 में क्या होता है, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। Some cell in the adult animal do not appear to exhibit division, that is hot cell। कुछ सेल जैसे हॉट सेल में डिवीजन नहीं होता है, हॉट सेल हो गया या फिर न्यूरॉन सेल हो गया, ये सब डिवीजन नहीं करते हैं। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली, और कुछ सेल होता है जो ओकेजनली यानी जब जरूरत पड़ेगा तभी डिवाइड करेंगे। दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज टू एंटर द इनएक्टिव फेज, और जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, G0 फेज में। हमारे सेल साइकिल था तो ये था M फेज, G1, S फेज और जैसे समझिए था G2 फेज। तो G1 फेज के बगल में जो क्या होता है, G0 फेज। G0 फेज में ही क्या होता है, हमारे सारे सेल रेस्ट करते हैं। सेल इन दिस स्टेज, इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट लेकिन डू नॉट प्रोलिफरेट अंडर लस्ट टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, और लेकिन ये डिवीजन नहीं करते हैं जब तक कि बहुत ही आवश्यकता नहीं हो। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। माइटोसिस किसमें देखने को मिलता है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में,
सोमेटिक यानी बॉडी का सेल। However, there are few exceptions to this where the haploid cell divide by mitosis. For example, male honeybee. जैसे इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एक मेल honeybee जो हैप्लॉइड होता है। Against this, the plant can also show mitotic division in both. और देखिए प्लांट में क्या होता है? प्लांट में केवल दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों माइटोसिस कर सकते हैं। फ्रॉम योर कलेक्शन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आगे देखिएगा अगर नहीं पढ़ा तो। जब देखते हैं हम लोग एक्चुअल एम फेज। व्हाट इज एम फेज? दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक, यानी ये क्या है? मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है, involving major recognition of virtually all components of cell, since the number of chromosomes in the parent and progeny remains is same, progeny cell is same, it is also called equational division। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम दोनों में सेम रहता है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं हम लोग। थ्रू फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें हम लोग 4 होता है। एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कितना होता है? 4 फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये जो भी है कैरियोकाइनेसिस का फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैनॉट बी ड्रॉ। मतलब कोई क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ किया जा सकता इन सभी के बीच में। ये सारे जो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन सभी के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। अब हम एक एक करके चारों देखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज क्या क्या होता है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रोफेज which is the first stage of karyokinesis of mitosis follow the S phase and G2 phase, जो S phase and G2 phase के बाद आता है। The S and G2 phase of in the S and G2 phase new DNA molecule form are not distinct but intertwined. Prophase is marked by initiation of prophase को हम कैसे मार्क करेंगे? जब देखेंगे कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। मतलब क्या होता है कि S phase और G2 phase में जो क्रोमोसोम ऐसे उलझा हुआ रहेगा, ऐसे उलझा हुआ रहेगा, और जब हम देखेंगे कि ये उलझा हुआ सुलझने लगे, मतलब एक लाइन में आने लगे, तो उसे ही हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे प्रोफेज स्टार्ट हो गया है। यानी क्या होता है? अनटेंगल क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिक कंडेंशन। अनटेंगल यानी सुलझ जाता है। द क्रोमोसोम विच had undergone duplication during S phase of interphase now begin to move towards opposite pole of cell. जो सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन, जो कहाँ डुप्लीकेट करते हैं? एस फेज ऑफ इंटरफेज। सेंट्रोमियर कहाँ कब डुप्लीकेट करते हैं? एस फेज में। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये हम लोग देखेंगे। क्रोमोसोमल, ये याद रखिएगा, हर एक लाइन यहाँ पे जरूरी है। Chromosomal material contains to form compact mitotic chromosome. Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at centromere. जैसे अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। देखिए ऐसे दिखा रहा है ये हमारा। फर्स्ट लाइन का कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा रहेगा सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर से क्या होगा? 2 क्रोमोसोम ऐसे अटैच होंगे, एक सी और ये थर्ड सी, फोर्थ सी। हम लोग पढ़ा तो नहीं, क्या होता है? 2N एंड 4C होते हैं। तो ये जो होगा ओरिजिनल होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं एक पेयर ए ओरिजिनल का, एक पेयर ए ओरिजिनल का, 2 पेयर। सेंट्रोमेयर विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज being to move, so centrosome being to move toward opposite pole of the cell which chromosome radiate out microtubules called ester. Each chromosome radiate out microtubules called ester. The 2 ester together with a spindle fiber form mitotic apparatus. Cell at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex. At the end of prophase ये माइक्रोस्कोप में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाते हैं, ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाते हैं, और ना ही न्यूक्लियोलस और ना ही न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। Now we'll see metaphase. The complete disintegration of nuclear envelope
मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज, मतलब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे भी बीच में है और यहाँ पे पूरा खत्म हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा खत्म हो गया है यहाँ पे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, सॉरी, अब यहाँ से क्या हुआ है कि ये मेटाफेज में चला गया। प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज मेटाफेज। Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm cell. By this stage, condensation of chromosome is completed. इसमें क्या होता है, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly, और ये ऑब्जर्व होते हैं। यदि क्रोमोसोम को हमें स्टडी करना होता है तो हम लोग कौन सा फेज सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं ये मेटाफेज। इसमें लिखा भी है, दिस देन इज द स्टेज at which morphology of chromosome is most easily studied. At this stage, metaphase chromosome made up of two sister chromatids. इसमें क्या होते हैं, two sister chromatids होते हैं which are held together by centromere। मतलब ये जो बीच में, ये जो बीच में आप लोग को दिख रहा है क्या है, centromere इसे कहेंगे हम लोग। A small disc shaped structure of the surface of centromere is called kinetochore। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि ऐसे देखिए, ऐसे रहेगा हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से एक ये और दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और इस पे एक स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोमियर पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से क्या होता है, हमारे ये क्रोमेटिड वगैरह जुड़ा हुआ होता है। सॉरी, क्रोमेटिड नहीं, ये स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ होता है। सब स्ट्रक्चर टू अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर से क्या करेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, स्पिंडल फाइबर से जुड़ेंगे और एक यहाँ जाके जुड़ेंगे ये सेंट्रियोल से। टू द क्रोमोसोम दैट मूव टू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ सेल। इस जुड़ने के बाद क्या करते हैं, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में हमारा होता है कि ये इस सेंटर पे आ जाते हैं। सारे क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, हमारे सेंटर पे आ जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। सेंटर पे आके प्लेट बना जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं हम लोग। And the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at equator with one of each chromosome connected by its kinetochore to a spindle fiber from one pole and sister chromatid connected by the kinetochore to opposite pole। इसमें देखिए दोनों पोल से ही हमारे क्रोमेटिड, एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा, दोनों पोल से ही हमारे क्रोमेटिड का है अटैच है। The plane of alignment of chromosome with metaphase is called metaphase plate। द की फीचर ऑफ मेटाफेज, इसमें भी ये दोनों याद रखना बहुत ही जरूरी है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, अटैच होता है क्रोमोसोम से। एंड क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पेसिफिक स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। नाउ एनाफेज, थर्ड इवेंट ऑफ karyokinesis, that is anaphase। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatids। देखिए इसमें क्या होता है, split simultaneously to form two daughter chromatids। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे हमारा जुड़ा हुआ था, तो एक इधर से खींचेगा और एक इधर से खींचेगा। ये जब दोनों पुल लगाएंगे, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। जब इधर दोनों खींचेंगे तो क्या होगा कि एक हमारा ऐसे, एक हमारे ऊपर की तरफ जाने लगेगा और एक हमारा ऐसे, और एक हमारा ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जाने लगेगा। Now we will look about anaphase। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate is split simultaneously। The two daughter chromatids, now referred to as a daughter chromosome of future daughter nuclei, being their migration towards two opposite poles। As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed toward the pole and hence leading at the leading edge। सेंट्रोमियर कहाँ डायरेक्ट होता है, टुवर्ड द पोल एंड लीडिंग एज विद आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोल है और ये जो पोल है, ऐसे देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, ऐसे क्रोमोसोम ऐसे होगा और इसका क्रोमोसोम ऐसे होगा और ये ऐसे स्पिंडल फाइबर के सहायता से इसे खींचेंगे। तो इसका ये जो एंड है ये पोल की तरफ होगा, इसका ये जो आर्म है इसके पीछे चलेगा। यही क्या यहाँ पे लिखा है, ट्रेलिंग बिहाइंड। यही यहाँ पे लिखा है ट्रेलिंग बिहाइंड। और इसका जो सेंट्रोमियर है वो क्या पे डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द पोल। और यहाँ पे देखिए ऐसे क्या होता है कि
जो सेल है यहाँ पे, ये डॉटर क्रोमोसोम हो गया, डॉटर क्रोमोसोम हो गया, तो इसमें अब सेल, अब यहाँ पे 2n से क्या हो जाएगा 4n। एनाफेज में जो क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, सॉरी 2n, हाँ 2n से 4n, और ये जो 46 है, जो 46 है उससे संख्या क्या हो जाएगी 2 इंटू 46 हो जाएगी, 2 इंटू 46 यानी 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। एनाफेज में कितना क्रोमोसोम होगा 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और इसका फीचर देखते हैं ये, द फ्लोइंग इवेंट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, द क्रोमेटिड्स मूव टू एट अपोजिट पोल, द क्रोमेटिड मूव एट अपोजिट पोल। Now telophase, at the beginning of final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective pole decondense and lose their indivisibility। मतलब ये जो यहाँ पे जो अपोजिट पोल पहुंच गए हैं वो दे लूज देयर इंडिविजुअल, मतलब वो एक ऐसे नहीं रहेंगे, जैसे मतलब क्या था, ऐसे था एक था, वो एक नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे फिर से क्या होने कंडेंस होने लगेंगे, ऐसे जैसे प्रूफ फिर से पहले होने वाला था वैसे हो जाएंगे ऐसे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एज ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एज each of the two poles, figure 10.2d। This is the stage which show the flowing key event। अब हम लोग देखेंगे कि टेलोफेज में क्या क्या की इवेंट होता है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल spindle poles and their identity is lost as discrete element। Nuclei envelop and develop around the chromosome cluster of each pole forming two daughter nuclei, nucleus, Golgi body and endoplasmic reticulum inform। यहाँ पे जो प्रोफेज है, जो प्रोफेज का बिल्कुल नहीं अपोजिट होता है एनाफेज। प्रोफेज में क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है डिस्ट्रक्ट हो रही थी, मतलब टूट रही थी, और यहाँ पे टीलोफेज, यहाँ पे टीलोफेज, प्रोफेज का उल्टा क्या होता है टीलोफेज, और यहाँ पे टीलोफेज में क्या हो रहा है वही हो रहा है, मतलब प्रोफेज का उल्टा क्या होता है टीलोफेज। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोफेज इज ऑफ टीलोफेज, प्रोफेज इज ऑपोजिट ऑफ टीलोफेज। तो नाउ वी विल सी साइटोकाइनेसिस। हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस देख लिया। एम फेज में क्या होता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस एंड देन फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस कैसे होता है एनिमल में और कैसे होता है प्लांट में, उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस accompanies not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division get completed। मतलब साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है सेल डिवीजन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टीलोफेज है, टीलोफेज में जैसे देखिए दो डॉटर है, यहाँ पे मतलब सेल 4 बन रहा है, ये डिवाइड होने जा रहा है, और यहाँ पे डिवाइड होकर क्या हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए हैं, फिर दो सेल बन गए हैं। In an animal cell that is achieved by appearance of furrow in the plasma membrane, इसी को हम लोग क्या कहेंगे फॉरो कहेंगे। ये जो यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन बना है इसी को हम लोग कहेंगे फॉरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फॉरो ग्रेजुअली डिपेंड अपॉन ultimately join at the center, dividing the cell cytoplasm into two। Plant cells, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by different mechanism। In plant cell, the wall formation start at the center। उसमें क्या होता है सेंटर पे। एनिमल में क्या हो रहा था, एनिमल में पेरिफेरी पे बना था, यहाँ पे पेरिफेरी से बना था, लेकिन जो प्लांट सेल है, जो प्लांट है उसका सेंटर से यहाँ पे सेंटर से उसका स्टार्ट होगा और दोनों तरफ ऐसे जाएगा and grow outward and meet the existing lateral walls। lateral walls मतलब जो पेरिफेरी वाला वॉल है। The formation of new cell wall began with the formation of simple precursor called cell plate। ये जो बीच में जो डेवलप कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे सेल प्लेट डेवलप कर रहा है। That represents the middle lamina। सेल प्लेट क्या करता है मिडिल लेमिना बिटवीन टू adjacent wall। जो सेल प्लेट यहाँ उसे वही क्या होता है मिडिल लेमिना। At the time of cytoplasmic division, cell organisms like mitochondria and plastic get distributed between two daughter cells। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis। ये याद रखना जरूरी है। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate conditions arise, leading to the formation of syncytium।
सिनसाइटियम का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल न्यूक्लियस। सिनसाइटियम का मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस। जैसे हम लोग जो कोकोनट वाटर पीते हैं वो क्या होता है, सिनसाइटियम। वो जो हम पानी पीते हैं उसमें केवल साइटोप्लाज्म रहता है और न्यूक्लियस रहता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहता है, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में भी होता है, लेकिन कुछ हैप्लॉइड सेल में भी होता है। जैसे प्लांट के कुछ हैप्लॉइड सेल है उसमें होता है। In some lower plants and some social insect, haploid cell also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of division in the life of an organism. Are you aware of some examples where you have a study about haploid and diploid insect? Mitosis usually results in production of diploid daughter cell. इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट होता है, मतलब जो ये जो सेल डिवाइड करके दो सेल बना रहा है, इन दोनों में क्या होगा, सेम जेनेटिक कंपोनेंट होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ग्रोथ, मतलब सेल का डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि उसका रेशियो बिगड़ जाता है। किसके बीच का रेशियो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का रेशियो यदि ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, उसका डिवीजन हो जाएगा। मतलब जैसे ही न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा और साइटोप्लाज्म का रेशियो कम होता जाएगा, तो ये डिवाइड करके क्या करेगा, न्यूक्लियस को थोड़ा कम बना देगा और साइटोप्लाज्म उसके पेरिफेरी में अधिक हो जाएगा, इसके रेशियो में। यह जो भी बात होता है वो रेशियो के तुलना में होता है। ऐसे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इसे नहीं कहते हैं। इट therefore become essential for the cell to divide restore the to ये डिवीजन क्यों होता है, to restore nucleus cytoplasmic ratio। A very significant contribution of mitosis is cell repair। और माइटोसिस से ही क्या होता है, सेल का रिपेयरेशन होता है। The cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of the gut and blood cell are being continuously replaced। Mitotic division in the meristemic tissue, the apical and the lateral cambium result in contribution of growth of plant throughout the life। ये हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ये जो इतना है ये हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कैसे डिवीजन वगैरह होता है।